Yesterday we have seen electric field due to long line charge. In fact, infinitely long line charge है वो, very long. Using the Gauss's law, application of Gauss's law, we have derived the relation for field, which is 1/4 pi epsilon naught lambda by r. Lambda is what? It is not the wavelength. Wavelength को भी lambda से represent करते हैं. यहाँ पे lambda क्या है? It is charge per unit length of the wire. And इसको हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 और नीचे 2 into 2 4 हो जाएगा. तो 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे देखो k की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, which is equal to 9 into 10 to the power 9. But still some of you are writing k की वैल्यू कितनी 8.854 into 10 to the power minus 12. It means you are not in the class. Last 10 days से हम यही डिस्कस कर रहे हैं. K is what and epsilon naught is what. After so many lectures, still you are just not paying attention in the class. What is the use? यहाँ पे लिख के भी दिया था कल. इसका मतलब not attending, just switching on and then leaving the class or somewhere else. Mind is somewhere else. You should know the difference. Some of you, only one of you, one of the student I'm talking about. I don't want to name, but she knows who is that. क्लियर? k कितनी बार हमने बताया? k जो है 9 into 10 to the power 9 है, which is nothing but 1/4 pi epsilon naught. And k is also denoting the dielectric constant. We should be clear about that. Where is the dielectric constant and where is this k? तो यहाँ पे clearly हमें पता लग रहा है 1/4 pi epsilon naught है. Dielectric constant को we'll avoid to write k. We'll write dielectric constant का epsilon r लिखेंगे, है ना उसका. तो ये वाला k यहाँ पर 9 into 10 पर 9 है, इसलिए न्यूमेरिकल में एंड डिजिट रॉन्ग हो गया फिर. ऑलराइट. और मैंने ये भी बताया कि बुक में मिस्टेक है ना. देन ऑल्सो नॉट बॉदर्ड. मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग कितना 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, है ना. तो बस आंसर देख के लिख देना सीधा, क्या बताने के बाद भी ध्यान नहीं देना. तो इतना आ रहा है देखो. कैन वी राइट 10? नो. इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 to the power -1 into 10 to the power -6 कूलम पर मीटर. तो 10 to the power -6 तो माइक्रो हो गया. 10 to the power -1 क्या है? 0.1. लेट इट बी लाइक दिस. अगर और ये 10 to the power 6 को माइक्रो लिख सकते हैं कूलम. ये आंसर होने चाहिए. तो क्लास में बताया जा रहा है, not bother to listen, copying the wrong things. Clear? Is it 0.1 or 10? 10 is not correct answer. It is 1/10 in fact, which can be 0.1. So you should be knowing how to convert it into micro or something as माइक्रो में कन्वर्ट करना है. माइक्रो से या तो 10 पर -6 से डिवाइड कर लो या ब्रेक कर लो ऐसे. All right, this was one of the questions. Or what else? Some more questions were there? Only one. पीछे थे क्वेश्चन. Some more were there. ये देखो, ये था एक. तो इसमें भी मिस्टेक्स है. Some of you have done it
लिमिट नहीं लगाई, किसी ने इंटीग्रेशन ठीक से नहीं किया। फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L लैम्डा dx, यहाँ से ये वाला फार्मूला। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। a का क्या हो जाएगा? ax आ जाएगा। a इज कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और ये b कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l। अभी जहां जहां पर भी है अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 कर देगी। अपर लिमिट l है, x को l से रिप्लेस कर दो, दिस विल बी al प्लस b l स्क्वायर बाई 2। l कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एट द मोस्ट यू कैन राइट इट a प्लस b l बाई 2 और l बाहर, or you can leave it like this, either you write or you write. Clear? Note down this. कैमरे ऑन है तुम लोग के? कैमरे ऑन इसलिए कराते हैं, बी अटेंटिव इन द क्लास, एंड ऑन करके सोना नहीं है। क्लियर? एंड एवरीबडी विल सेंड द होमवर्क। अभी भी आई एम नॉट रिसीविंग, आई एम रिसीविंग द होमवर्क 2-3 लेस देन what numbers are there in the class. ठीक है, डन? इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, we'll see further. देखो, I think one more question was there. हाँ, ये वाला था। Okay, we'll going back to some of the questions. देखो, ये वाले क्वेश्चन में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, एक चार्ज क्यू है और नीचे माइनस क्यू है। तो उसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, एक क्यूब ऊपर बना लिया हमने और एक क्यूब नीचे बना लिया, है ना। तो ऊपर वाले क्यूब से जो नीचे ऐसे फ्लक्स जाएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से आउटवर्ड फील्ड लाइन जाती है, फ्लक्स इज आउटवर्ड, तो उसका 1/6 हो गया। और नीचे वाला जो क्यूब है उसमें इनवर्ड फ्लक्स जाएगा, माइनस है ना, इनवर्ड जाएगा, तो वो भी डाउनवर्ड ही है, तो एडअप हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी है ना, बट एक दोनों डाउनवर्ड है, एक ही डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग टू से डायरेक्शन, बट वी कैन से कैंसिल आउट नहीं कर रहे, ये इसके भी नीचे आ रहे, दूसरे वाले के भी नीचे आ रहे, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो रहे। अपोजिट जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो सेम डायरेक्शन में है, तो नेट नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलर विल बी एडेड अप टुगेदर, है ना। तो ये Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ऐसे सरफेस होती तो अभी कैसे करते? हाउ टू डू देन? हाउ टू डू इफ सर्कुलर प्लेट इज देयर? सर्कुलर प्लेट के लिए not possible to do. Now, of course, it is possible, but as far as your course is concerned, CBSE and NEET,
you are supposed to know solid angle actually. Solid angle से करते हैं, and otherwise Gauss's law से it is not possible. Solid angle का फार्मूला अगर आता है तो कर सकते हैं. I will teach you solid angle. अपने कोर्स के बाहर सॉलिड एंगल है अपने अपने उसमें 11th की बुक में, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू यूज हियर. इनसफिशिएंट है वो, तो उसके लिए फिर से हमें एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, देन ओनली. So it is important for JEE advanced point of view. I will teach you solid angle extra classes में, then you can do it. ठीक है, so this cannot be done by this method. All right. एक क्वेश्चन देखो ये है एनसीईआरटी बुक का, बेस्ड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, फ्लक्स का है ये दिस क्वेश्चन. तो यू कैन ट्राई इट इन होमवर्क दिस वन. फ्लक्स दिया हुआ, माइनस फ्लक्स किससे होता है? जब चार्ज माइनस हो, देखो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना. अगर फ्लक्स माइनस है इसका मतलब चार्ज का आंसर भी माइनस आएगा. माइनस मीन्स ये फ्लक्स, माइनस फ्लक्स मीन्स चार्ज मस्ट बी माइनस, फील्ड लाइंस मस्ट बी इनवर्ड. तो माइनस दिया तो माइनस पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू अपने आप माइनस आ जाएगी. ठीक है, तो रेडियस का रोल जो है नहीं रहता, जनरली डायमेंशंस का रोल नहीं रहता, बिकॉज डू वी हैव द व्हाट इज कॉल्ड, इसमें डायमेंशंस नहीं आती है ना गॉसेस लॉ में. बट वन मोर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. देखो ये जो प्लेट वाला क्वेश्चन था, करेंगे वाला, कांट वी डू इसको विदाउट गॉसेस लॉ कर सकते हैं? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू ये वाले फार्मूले से कर सकते क्या ई डॉट डी एस से? नहीं कर सकते, बिकॉज फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो निकाल सकते हैं हम, बट कॉर्नर्स पे भी निकाल सकते हैं, बट सो मेनी प्लेसेस डिफरेंट फील्ड है. विच फील्ड यू आर गोइंग टू यूज? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड है. हाउ मेनी फ्लक्स यू विल फाइंड आउट एंड एडिट. तो डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज दिस फार्मूला. ठीक है, इसलिए गॉसेस लॉ में कन्वर्ट करके करते हैं उसको. ये फार्मूला कहाँ पर है? जहाँ पे हमें ई दिया हो, और दैट आल्सो यूनिफॉर्म होना चाहिए होल सरफेस डीएस पर. यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं. और गॉसेस लॉ इज handy for such situation where we can make it closed surface, then field, even if field is non-uniform at the points, at various points, but it can give you the correct result. ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लो, होमवर्क में करके भेजो, है ना. फार्मूला बेस्ड है. रेडियस डबल हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पहले वी आर डन इट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? माइनस में आएगा आंसर. पुट द वैल्यू इन द गॉसेस लॉ, यू गेट द राइट आंसर. What about this checkpoint? देखो इसमें देखते क्या है. What is the question? The figure shows 3 situations in which Gauss's cube sits in electric field. The arrows and values indicate the directions of field lines and magnitude of the magnitude and magnitudes of the flux through the 6 sides. ये जो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड दिए ये वाला ऐसा यूनिट में. लाइटर एरोज आर ऑफ द हिडन फेसेस. कौन सा हिडन फेसेस? एक तो इधर वाला हिडन फेस है, एक पीछे वाला हिडन फेस है, और नीचे वाला भी. विजिबल फेस कौन सा? फ्रंट वाला, टॉप वाला, राइट वाला. ठीक है, ऑलराइट. इन विच सिचुएशन डज द क्यूब एनक्लोज पॉजिटिव नेट चार्ज? पॉजिटिव नेट चार्ज कब होगा? जब नेट फ्लक्स इज आउटवर्ड, है ना. नेट फ्लक्स जब इनवर्ड होगा तो फील्ड भी इनवर्ड होगी, तो फ्लक्स जो है आई मीन चार्ज नेगेटिव होगा. इसमें काउंट करते चलो. अच्छा, इसमें
किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में जीरो नेट चार्ज है। तो इसमें फ्लक्स ऐड कर लो। देखो टोटल फ्लक्स फर्स्ट वाले में कितना हो रहा है फ्लक्स, आउटवर्ड पॉजिटिव लिया जाएगा 5 प्लस कौन कौन सा आउटवर्ड है। ओके विल स्टार्ट फ्रॉम द नियर बाई फेसेस। आउटवर्ड कौन सा 2 है, देन 5 है, देन 7 है। ठीक है, इतने आउटवर्ड होगा, दिस वन दिस वन दिस वन, और इनवर्ड 7 एंड 4 एंड 3 माइनस हो जाएंगे। इनवर्ड 7 कितना है, 2 एंड 5 7 प्लस 7 14, और ये भी 14, तो जीरो आ रहा है। फ्लेक्स जीरो मीन्स अगर गॉसेस लॉ में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो है, तो चार्ज भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो नेट चार्ज मीन्स ए ऑप्शन 1 वाला, इसका 1 हो गया। बाकी ये निकाल लेना, बी एंड सी फाइंड आउट कर लो। नेगेटिव चार्ज आई मीन नेगेटिव चार्ज किस में होगा, इसमें होगा या इसमें, एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों में से एक में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। और इसमें तुम्हें नेगेटिव फ्लक्स दिया है, तो ऑफ कोर्स एक की फ्लक्स है तो चार्ज माइनस आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, क्यू विल बी नेगेटिव। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दिस वैल्यू इज इन फैक्ट 8.854 into 10 to the power minus 12, not k. क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है। जिसमें मैंने एक आधा कर दिया ऊपर वाला, आधा मीन्स 1 part is done. Clear? So still we are on the Gauss's law and seeing the numericals, some of the numericals, and 2 applications are still remaining. We'll see one of them now. ठीक है, ये समझ में आया क्या किया हमने फर्स्ट वाले में, आउटवर्ड वाले पॉजिटिव लिए फ्लक्स, फ्लक्स दिए हुए देखो यूनिट से, और इनवर्ड वाले बिकॉज इनवर्ड फ्लक्स कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन अंदर जाती है, अंदर जाती है तो फ्लक्स भी बोला जाएगा अंदर जा रहा है ना। तो इनवर्ड वाले माइनस लिए, जब देखा कि टोटल फ्लक्स जीरो ही हो गया, इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है अंदर, नेट चार्ज जीरो है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, किस में नेट चार्ज जीरो है, किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। टोटल फ्लक्स अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव, और टोटल फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा, नेट चार्ज विल बी नेगेटिव, बिकॉज गॉसेस लॉ से हम बोल सकते हैं phi is equal to q upon epsilon naught. Okay, moving on to the next one. हाँ, ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग है। देखो इसमें I told you any shape, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। Let us discuss this one. इसमें क्या करना है, एक और कंटेनर ऊपर ऐसे रख देना है, एक और कंटेनर रख देंगे हम इसके ऊपर ऐसा। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस बन गई, क्लोज सरफेस बन गई। टोटल फ्लक्स कितना है, आधा ऊपर से जाएगा, आधा नीचे से जाएगा। Am I right? Half of the flux will go from the top one and half will go from the bottom container. So flux through the hemisphere will be, lower hemisphere will be total flux का आधा, half will be going from top one, जो कि हमने inverted put कर दिया। Are you getting it? You put the similar hemisphere inverted onto the one which is given, it will make the closed surface. Closed surface बन गई तो गॉसेस लॉ लगा सकते हैं, बट 50-50 डिवाइड होगा, half of the field lines will go from the upper one, half of will be going from the given container. तो आधा टोटल कितना होता है गॉसेस लॉ से, q upon epsilon naught,
by 2. तो आंसर विल बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाई 2 नीचे है, ऐसा नहीं करना है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 और ये 2 ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तुम, ऐसा थोड़ी है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 यहाँ पे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा 2, डबल नहीं होगा। कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द हाफ है, हाफ मीन्स 2 विल बी इन डिनोमिनेटर नॉट इन न्यूमरेटर। गॉट इट। तो कंटेनर जो है दिस, लेट इट बी एनी शेप, सिलेंड्रिकल हो, है ना, या फिर ऐसा कुछ हो, है ना, इस तरह से हो, कोनिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, तो यू हैव टू पुट इट सिमेट्रिकल, है ना। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल पुट कर दो, 50-50 विल बी डिवाइडेड। ओके, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। I think almost done. Nothing left now. Okay. So next one is most important. One is second application is field due to uniformly charged infinite plane sheet. Field due to uniformly charged infinite plane sheet. Infinite means very large plane sheet. Now, इसकी field निकालनी है. तो what we do? एक इक्वेशन E डॉट ds. I told you just मेन पॉइंट क्या है इसमें. एक तो इक्वेशन बनेगी phi is equal to E dot ds. अदर इक्वेशन phi is equal to Q upon epsilon naught. दोनों को इक्वेट कर देंगे, अपनी फील्ड का डेरिवेशन आ जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन ऑल द केसेस. बट यहाँ पर जो पहला phi is equal to E dot ds है, इनफैक्ट E ds, तो ds कितना होगा, एक एंड ये, दूसरा एंड ये, 2ds हो जाता है. कर्व सरफेस पे फील्ड फ्लक्स 0 आता है बिकॉज एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा और फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट्स आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है चार्ज बॉडी से, तो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे फील्ड लाइन जाएंगी. कर्व सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ 90 डिग्री, तो कर्व सरफेस पे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा. कल किसमें 0 था, कल कहाँ पे 0 था? yesterday we did the derivation in that कर्व सरफेस एंड पे 0 था, कर्व सरफेस पे नॉन 0 था. यहाँ पे उल्टा है, इसमें कर्व सरफेस पे 0 है बिकॉज सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ. तो यहाँ पे हम पॉइंट P लेंगे और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे. तो कर्व सरफेस पे तो फील्ड के साथ एंगल 90 आएगा सब जगह, ऑल लोकेशन यू कैन सी. एंड बचेंगे, तो एंड कितना, एक ds इधर आ जाएगा, 1 ds विल बी दिस, अदर ds विल बी अदर, एक ds ये होगा, एक इधर होगा. और दूसरी इक्वेशन जो होगी, गॉसेस लॉ इज व्हाट, phi is equal to Q upon epsilon. चार्ज कितना है सिलेंडर के अंदर, चार्ज कितना है, इतना, दिस मच. लेट मी शो यू विद अदर कलर. ये ग्रीन दिख रहा है, दिस मच इज इंटरसेक्टिंग, इतना ही चार्ज है. तो बट शील्ड इज, आई मीन दैट शीट इज इनफाइनाइटली लार्ज, तो उसका क्या लेना पड़ता है, सिग्मा लेना पड़ता है. सिग्मा इज द चार्ज पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज, तो ये कितना एरिया है, कितना इंटरसेक्ट करेगा. अगर हमने इसको ds लिया तो ये भी ds होगा, इंटू ds आ जाएगा. दैट विल बी द चार्ज इनक्लोजिंग इन द सिलेंडर. सिग्मा फॉर यूनिट एरिया, area inside the cylinder of the sheet is ds. चार्ज सिग्मा इंटू ds कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर सिग्मा के टर्म्स में आ जाएगा. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा. बिकॉज 2 एंड्स हैं तो ds, जब एरिया लिखेंगे इधर का भी एरिया लिखते,
इधर का भी ये लगता है। क्लियर? तो दैट्स हाउ these are the things involved. So let us see now. इंट्रोडक्शन में ये सब बताना है, इसमें सिग्मा जो है इनफाइनाइट शीट है, बट वन थिंग इज नॉट क्लियर इन एनसीईआरटी बुक, ये शीट किसकी बनी हुई है? दिस शीट इज ऑफ दिस शीट इज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे पेपर, जैसे प्लेन ऑफ द पेपर ले लो, प्लेन ऑफ द पेपर ले लो, ठीक है, और उस पे वन साइड चार्ज प्लेस कर सकते हैं, only front one side, that's all. So one layer, only single layer of the charge, which is possible on the insulating plate, not the conducting plate. Conducting में क्या होता है? If you give the charge, it will be distributed all over the surface. So either sheet should be of non-conducting material, or sheet itself should be made of the charges. इतनी थिन शीट बना के चार्ज दोनों तरफ से दिख रहे हैं, तो वी शुड नो चार्ज की शीट तो बनाना पॉसिबल नहीं है, बट नॉन कंडक्टिंग प्लेन को हम चार्ज देंगे तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, एक तरफ है ओनली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा है नॉन कंडक्टिंग शीट, एनसीईआरटी बुक डजंट मेंशन कि कौन सी है, बट यू शुड नो इट इज नॉट द कंडक्टिंग शीट बिकॉज उसमें दोनों तरफ चार्ज आ जाते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंट डेरिवेशन, जो कि हम बाद में करेंगे, नॉट नाउ। दिस इज द मेन डेरिवेशन। कंसीडर infinitely large sheet of non-conducting material having surface charge density sigma, and sigma is the charge per unit area. Let P be the point here at certain distance where the field is to be found. Make the Gaussian cylinder as shown, as a Gaussian cylinder बना लो, so that point P is on the one end. Field is normal to the sheet. Normal field, as I told you, perpendicular originate करती है. Now flux through the curved surface is 0. Why? Curved surface पे angle 90 आ रहा है, and cos flux में cos theta आता है, cos theta will make it 0. ठीक है, कर्व सरफेस से 0 हो गई, तो ये तो हो गया। नाउ फॉर एंड्स के लिए लिख रहे हैं हम लोग, इधर भी है ds एंड ई, इधर भी रहेगा, तो phi is equal to either you write cyclic integral or you write sigma. तो सिग्मा लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बुक की वर्डिंग यूज करें, सिग्मा इज सेम टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ई तो कांस्टेंट है वहां पर एंड्स पर पूरी जगह, और समेशन ऑफ किसका होगा? ds। तो ds जो है, इनफैक्ट एक ds ये, एक ds ये, कर्व सरफेस का एरिया नहीं लेंगे बिकॉज वहां पर फ्लक्स 0 है, तो केवल टू एंड्स का, तो 2 into ds हो जाएगा, बिकॉज टू एंड्स, वी आर डिस्कसिंग टू एंड्स। तो दिस इज द इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? यहां पर एक ds है और एक ds यहां पर है, तो इसलिए 2। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आई टोल्ड यू will be made from the Gauss's law. Phi is equal to q upon epsilon naught, and q क्या होता है? सिग्मा इंटू ds, सिंगल ds यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, देखो बीच में, इट इज ओनली वन एरिया, आई टोल्ड यू वन लेयर रहेगी, वन लेयर मीन्स ओनली ds, बैक साइड में चार्ज नहीं होगा। अगर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो जो सरफेस विजिबल है उसी साइड में चार्ज है, बैक साइड में नहीं है ना, तो इसीलिए ओनली वन ds। इक्वेट कर दो दोनों फ्लक्स के लिए, इक्वेशन 1 इज आल्सो फॉर फ्लक्स। ओके, ये पहले वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो दिस विल बी सिग्मा इंटू ds। ये इक्वेशन 2 हो गई, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट साइड सेम है, तो इक्वेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, e इंटू 2ds, और ये एज इट इज ds विल गो, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर सिग्मा बचेगा
और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और सिग्मा अगर माइनस भी है तो मॉड में रखो, और माइनस होगा तो कैसी फील्ड लाइंस आएंगी? इनवर्ड आएंगी। अगर ये माइनस है, फील्ड लाइंस विल कम इनवर्ड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विल बी सेम। जैसा कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए आई टोल्ड यू, कीप इट इन द मॉड एंड इंडिकेट द डायरेक्शन सेपरेटली, आइदर आउटवर्ड या इनवर्ड, दो डायरेक्शन होंगी यहाँ पर। तो इट इज इट यूनिफॉर्म? आंसर इज यस। यूनिफॉर्म मीन्स नो चेंज इफ यू मूव अवे या कम क्लोजर, वेदर पॉइंट पी इज क्लोजर और अवे, यहाँ पर है या पास में है या बीच में है। तो आर तो आया ही नहीं, ये डिस्टेंस तो हमने लिया भी नहीं और आया भी नहीं इसमें, है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी हमें। तो यूनिफॉर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इंडिपेंडेंट को कैसे लिखते हैं? आर टू द पावर 0। आर टू द पावर -1 किस में आया था? लाइन चार्ज में आया था। आर टू द पावर -2 किस में आता है? पॉइंट चार्ज की फील्ड में। आर टू द पावर -3 किस में आता है? डायपोल की फील्ड में। तो 0 से लेकर -3 तक है। न्यूमरेटर में है तो माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आर आते, बाकी सारे आर डिनोमिनेटर में आते हैं, इसमें आया ही नहीं, इंडिपेंडेंट। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे एन कैप लगा दो या एरो लगा दो। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द शीट। पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट वेक्टर आउटवर्ड जाएगा शीट से, है ना। और नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो यूनिट वेक्टर इनवर्ड आएगा। तो दिस इज द जस्ट, वी डोंट यूज इट। हम लोग सेपरेट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन सेपरेट लिख देंगे, टुवर्ड्स या अवे, नॉर्मल टू द शीट। तो दिस इज मोस्ट, इसमें तो सिंगल टर्म पे डिपेंड कर रही है ओनली। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तो फिर निकाल सकते हैं। डायमेंशनली बैलेंस है ऑफ कोर्स। सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। एरिया नीचे, नीचे एरिया मींस लेंथ की 2 डायमेंशन। अगर ऊपर चार्ज है तो नीचे लेंथ की 2 डायमेंशन आएंगी, स्क्वायर में आएंगी। ऊपर अगर क्यू है तो यू कैन सी दिस डेरिवेशन। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ओके, डेरिवेशन देख लो। चलो, यू कैन एंड हियर, यहाँ पे एंड कर सकते हैं डेरिवेशन को। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेरिवेशन in the board's examination, which is depending only on the one factor, that is sigma. Other two are constant. Since sheet is infinite or very large, therefore field happen to be uniform. It is non-conducting sheet. Let me remind. Conducting में दोनों आगे पीछे दोनों तरफ चार्ज आ जाते हैं। अगर ये कंडक्टिंग शीट होती तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ता हमें। कहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पर भी 2 आएगा, बिकॉज फ्रंट साइड से और बैक साइड दोनों तरफ लेयर फॉर्म हो जाती। तो 2 विल गेट, वुड हैव कैंसल्ड। यहाँ पे फिर 2 नहीं आता। कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। व्हाई? बिकॉज वी विल हैव टू डीएस, एक फ्रंट साइड में एक रियर साइड में। यहाँ पर भी 2 आएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 नहीं आता। तो कंडक्टिंग शीट विच इज नॉट इन अवर कोर्स फॉर्मली, अपने कोर्स में नहीं है, एज ए न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो उसमें 2 विल बी जस्ट कैंसल्ड। इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग शीट का जो charge conducting sheet will have the twice the field as compared to this case.
infinite plane sheet which is of non-conducting material. Done it? All right. तो इसके कुछ एप्लीकेशन देखते, some of the numericals we'll see, interesting numericals, good numericals. देखो, एक तो ग्राफ देख लेते हैं पहले. Draw the variation of electric field with respect to distance r from the sheet in above case. तो r पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ग्राफ कैसा आएगा? If you increase the r, e will not increase, है ना? तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ. अगर यू आर क्लोज तभी भी फील्ड उतनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द शीट देन आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कांस्टेंट है, व्हाटएवर द वैल्यू कम्स. सपोज 10 एसआई यूनिट है, 10 एसआई यूनिट रहेगी थ्रू आउट, वेदर यू मूव अवे, यूनिफॉर्म रहेगी. इफ on this side arrows will be outward अगर पॉजिटिव चार्ज है, this side again arrows will be this side, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एरो विल रिवर्स देयर डायरेक्शन, माइनस हो जाएंगे, टुवर्ड द शीट आएंगे. बट डायरेक्शन जो है ये हमने इस साइड की दिखाई, ये वाला पार्ट. अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो आर विल बी नेगेटिव, फील्ड लाइन जो है माइनस हो जाएंगे. माइनस मीन्स नीचे दिखाना पड़ेगा ऐसा. अगर ऊपर का प्लस दिखाया हमने तो ये वाले स्पेस का generally this much is shown, but if you consider this one you have to show this side यूनिफॉर्म है. ये भी आर अगर माइनस है तो डायरेक्शन चेंज हो रही, ऊपर की प्लस ली है तो नीचे की माइनस है ना. लॉजिकली अगर हम दोनों दिखाना चाह रहे हैं तो लेट अस सी. चलो बुक में नहीं है इसका डायग्राम, यू हैव टू डू योर ओन. मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है जितना ये है. नीचे की अपोजिट हो गई, लाइक दिस है ना. व्हाट अबाउट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, टेक ऑफ जस्ट मेड इट फॉर यू. कैलकुलेशंस इसमें कुछ भी देखो. if the surface charge density of the infinite sheet is 10 epsilon naught per unit, find E due to it at distance 1 meter and 2 meter. तो इसमें वैल्यू पुट कर दो. तो ये क्या है, सिग्मा दिया हुआ है ना, दैट इज 10 epsilon naught, और नीचे कितना होता है 2 epsilon naught. कितना आ गया 5 SI यूनिट, 5 न्यूटन पर कूलम. तो is it for 1 meter or 2 meter or for both? For both 1 meter and 2 meter. For both 1 meter and 2 meters, दोनों के लिए, because यूनिफॉर्म है for both part. ठीक है, क्लियर. सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से. ये सिग्मा है, सिग्मा गिवन इज 10 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. ऑलराइट, एंड तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला. दीज आर द टू साइड टू इनफाइनाइट शीट्स.
साइड व्यू दिखते एक्चुअल में ऐसे है, दे आर लाइक दिस बोथ, वी आर एबल टू सी ओनली दिस वन एज, ठीक है। एक पे हमने पॉजिटिव सिग्मा चार्ज दिया, एक में नेगेटिव, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है। तो यू हैव टू फाइंड आउट नेट फील्ड एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। इस रीजन में निकालना है, बीच में निकालना है, राइट साइड में निकालना है। एज आई टोल्ड यू, फील्ड विल क्रॉस, इसकी फील्ड तो ऐसे जाएगी, इसकी फील्ड माइनस है तो माइनस फील्ड इधर आएगी। तो फील्ड जो है सबकी, इसकी फील्ड भी यहाँ पर अवेलेबल होगी, इसकी भी अवेलेबल होगी, बीच में ऑफ कोर्स होंगी, राइट साइड में भी। डोंट थिंक कि ये अगर ये शीट आ गई तो फील्ड लाइंस बाहर होंगी क्या? यस, दे कैन नॉट ब्लॉक, ओनली थिंग इनसाइड फील्ड विल चेंज, वैक्यूम में सेम रहेगी, जितनी इधर है उतनी बाहर भी, अदर साइड आल्सो विल बी रिमेनिंग यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है, वी आर सीन डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है। तो फील्ड विल बी प्रेजेंट हियर, दोनों की इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, उनका वेक्टर सम करना है, उनका वेक्टर सम करना है। तो लेट अस सी, जो फर्स्ट वाली प्लेट है, प्लेट 1, और ये प्लेट 2 है, तो 1 की ये इसकी प्लस चार्ज है, तो एट पॉइंट 1 फील्ड विल बी आउटवर्ड, है ना, प्लस की अवे होती है, और दूसरे वाले E1 इज आउटवर्ड, और इसकी दूसरी वाली प्लेट की माइनस है, तो माइनस मीन्स फील्ड विल बी टुवर्ड्स इट। तो एट 1 ई नेट विल बी 0, एक लेफ्ट है एक राइट है, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस 0 हो गई। एट 2 पर देखो, ये जो पॉजिटिव है इसकी फील्ड आउटवर्ड आएगी ऐसे, नेगेटिव वो भी उसी डायरेक्शन में आएगी, बोथ हैपन टू बी इन सेम डायरेक्शन। एट 2 ई नेट विल बी ई प्लस ई, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 2E डबल हो गई फिर। एट 3 पॉइंट नंबर 3, व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। फर्स्ट वाली प्लेट की रेडियली आउटवर्ड, फर्स्ट वाले प्लेट की रेडियली आउटवर्ड, व्हाट अबाउट सेकंड प्लेट, ये वाली रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव है वो, अपोजिट, नेट फील्ड इज अगेन 0 एंड पॉइंट नंबर 3 आल्सो। तो बीच में ही फील्ड है, देखो बीच में ट्वाइस हो गई, और 1 एंड 2 स्पेस पर अपोजिट हो गई, देयरफॉर नेट फील्ड 0 हो गई। और यू कैन मेक इट लाइक दिस, जैसा फर्स्ट में बनाया हमने, एट पॉइंट 3 बोथ, वन इज दिस साइड, अदर इज दिस साइड, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, देखो इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, आर पे डिपेंड करता नहीं, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, प्लस की आउटवर्ड एंड माइनस वाले चार्ज की इनवर्ड, फील्ड लाइंस जो है वी आर सीन पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड आउटवर्ड होती। तो ये हो गया तुम्हारा बीच में, बस बीच में ही फील्ड इफेक्टिव है, आउटसाइड स्पेसेस में 0 हो रही। अगर इसको भी पॉजिटिव कर दो चलो, तब क्या होगा, आउटसाइड दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी, यहाँ पे 2E हो जाएगी, और बीच में अपोजिट हो जाएंगे, 0 हो जाएगी, और इसमें भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, यहाँ भी 2E हो जाएगी। इफ यू मेक इट बोथ प्लस और बोथ माइनस, तो आउटसाइड द स्पेस, लेफ्ट एंड राइट साइड के स्पेस में एड अप हो जाएगी, बीच में 0 हो जाएगी। इफ वन इज प्लस अदर इज माइनस, देन इट विल बी बीच में नॉन जीरो, डबल हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट साइड में 0 हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस। तो कितनी होगी ये, बाय द वे 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में। तो ये फील्ड हम लोग कैपेसिटर में यूज करने वाले, आगे नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रहती है, एक नेगेटिव की रहती है।
एक प्लेट पॉजिटिव रहती है सिग्मा, दूसरी नेगेटिव रहती है, तो उसकी फील्ड ये, और सिग्मा को हम बाद में Q अपॉन A लिख देंगे, A विल बी एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्या मिला हमें? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। बीच में, और दोनों लेफ्ट एंड राइट स्पेसेस में 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी देखो सेम है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स parallel and close to each other on their two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plate have surface charge densities opposite sign, एक में प्लस एक में माइनस, दिस मच। सिग्मा दिया है, हम मॉड लेंगे, इसको यहाँ भी मॉड रहने दो, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। यही क्वेश्चन है इनफैक्ट, यहाँ पे तुम्हें सिग्मा की वैल्यू प्लेस कर देनी है। Does somebody have the doubt in this question? देखो आंसर विजिबल है, 0 0 दिख रहा है इसका, बीच में नॉन जीरो आएगा। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर रॉन्ग दिया, आंसर रॉन्ग दिया। देखो इसमें बहुत सो मेनी मिस्टेक एक्चुअल में। इनफैक्ट आंसर जो है ना, यहाँ पे -12 होगा तो आंसर मैच करेगा, यहाँ पे 22 की जगह -12 करने से आंसर मैच कर जाएगा। आइदर यू चेंज द आंसर और यू चेंज ये, -12 कर लो तो आंसर मैच हो जाएगा। बट टेल मी, यू सम ऑफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बोलो। is the question right or wrong? Except this, सर मेटल ये प्लेट्स दिए हैं ना। हाँ मेटल प्लेट्स दिए, यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कंडक्टर में तो फील्ड कुछ और होती है, डबल होती है इसकी, है ना, बट स्टिल आई एम इंसिस्टिंग कि यही होगा। कहाँ पे कंट्रोडिक्शन है बोलो? इन फैक्ट ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन इन द नेक्स्ट चैप्टर। एनीवे, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या होता है जब दो, अच्छा मैंने ये भी तो बोला कि आइसोलेटेड प्लेट, बट ये आइसोलेटेड नहीं है, दो प्लेट्स हैं। टू प्लेट्स में क्या होता है, इवन इफ दे आर ऑफ मेटल, तो उसमें चार्जेस अंदर की सरफेस पे आ जाते हैं, बैक साइड में कुछ भी नहीं होगा, फ्रंट साइड में होंगे, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर। कैपेसिटर जब पढ़ते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल डिस्कस। इफ आइसोलेटेड प्लेट है, सपोज मेटल की आइसोलेटेड प्लेट है ना, तो दोनों साइड में चार्ज होते हैं, फ्रंट साइड में भी बैक साइड में भी। और जब दो प्लेट्स रखते हैं तो इंडक्शन से वो पास में आ जाते हैं, प्लस वाले सारे चार्जेस फ्रंट में आ जाएंगे इधर, और दूसरी की जो माइनस वाली साइड है, दूसरे माइनस है वो भी फ्रंट में आ जाएंगे, आगे साइड में आ जाएंगे, इस तरफ नहीं रहेंगे, इसमें बैक साइड में नहीं रहेंगे, है ना। तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल व्हेन वी यूज द पेयर ऑफ मेटेलिक शीट्स। आइसोलेटेड में पॉसिबल नहीं होंगे, आइसोलेटेड में इट हैज टू मूव all over the places because nobody is there to stop them. They are free to move. But if it is the pair of two plates, then it is possible single layer of charge on one side only. इसीलिए यहाँ पे दिया है। तो this point is will be discussed in the next chapter कि दो plates है तो charges front में आ जाते हैं, facing surface पे आ जाते हैं। That is what is the capacitor. That is what is called capacitor, जो कि next chapter में है। But anyhow, I have explained your point. Explain this point. We can discuss again in the next chapter this point with the diagrams and all. Okay. I think time is just running out. Let me give you one more questions. One or two more questions based on this only. This topic only.
तो ये 24th यू कैन जस्ट नोट डाउन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आल्सो, नंबर लिख लो उसका। देखो एक ये अगर हमने अगेन अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विद द नॉन कंडक्टिंग, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, which is not mentioned in textbook, it should have been। ठीक है, तो एक प्लेट ऐसे, एक शीट ऐसे लार्ज, यहाँ पर इवन इफ दे आर seems to be of short plate, but you have to take it large plates। ठीक है, एक प्लेट हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो you have to write the field in the first quadrant and last quadrant। पॉइंट 1 पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और पॉइंट 2 इज अपोजिट साइड। तो यहाँ पर फील्ड लिखो कितनी होगी, पॉइंट 2 पर कितनी फील्ड होगी। ठीक है, रेफर डायग्राम एंड फाइंड नेट फील्ड at points 1 and 2, consider large non-conducting sheets। Consider infinite sheets, है ना, जो टेक्स्ट बुक की वर्डिंग से वो यूज करते हैं। Easy question, just these points already have been highlighted, you have to just remember the point what I am highlighting always। Easy, but it can be good question, very important question। Boards and JEE both need both, and JEE also। No hint will be given, use the formula। दोनों का कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे एंड कर रहा हूं मैं, आई एम एंडिंग दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसमें दो शीट दी है, देखो इधर भी है, इधर भी है ना। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने नॉन कंडक्टिंग शीट, जो हमने डेरिवेशन किया वही। तो देखो जस्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू कैन इफ टाइम इज नॉट देयर यू कैन टेक द स्नैपशॉट। द फिगर शोज टू लार्ज मींस इनफाइनाइट ले सकते हैं, पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स with identical positive uniform surface charge densities, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, and a sphere with the uniform positive volume charge density, इसमें प्लस चार्ज है, यहाँ पे स्फीयर है, पॉइंट चार्ज ही है, very small, it can be taken as a point charge। Rank the 4 numbered points according to the magnitude of net electric field their greatest first। ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। कहाँ पे मैक्सिमम है, मैग्नीट्यूड लिखना, यू फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शंस। वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा मैग्नीट्यूड पूछे जाते हैं, बिकॉज डायरेक्शंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ओनली मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंपेयर्ड। तो सबसे मैक्सिमम किस पे वो लिखना है, मैक्सिमम फर्स्ट, एंड जो सबसे लास्ट में सबसे कम है वो लास्ट में लिखना है। तो यू हैव टू अरेंज दिस सीक्वेंस। तो ये तो इनफाइनाइट शीट्स है नॉन कंडक्टिंग, और बीच में एक चार्ज भी रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन, अभी तक जो पढ़ा हमने सबका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वी हैव सीन टुडे फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट दैट इज नॉन कंडक्टिंग, है ना, उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ इट इज मोर देन वन शीट then you have to add them vectorally, add the field with the vector addition, because they are the vector quantities, field are the vector quantity, simply add नहीं कर सकते, वेक्टर से ऐड करने हैं, एंड वेक्टर में भी अगर सेम डायरेक्शन में होती तो सिंपली ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में होती सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाते, बट इफ एंगल इज डिफरेंट अदर देन दिस टू, देन यू हैव टू यूज द वेक्टर लॉ। क्या है वेक्टर लॉ, रूट ऑफ resultant vector law of addition, a square plus b square plus 2ab cos theta। ऑफ कोर्स इस फार्मूले में यूज, इसमें तो अपोजिट ही आएंगी अंदर, है ना, बट ऑल हैपन टू बी विद दिस, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा इससे होती है, a square plus b square plus 2ab cos theta
A will be the first field of the first plate, B will be the field of second plate, है ना? और यहाँ पे इनफैक्ट एक और सोर्स है फील्ड का, 3 फील्ड हो रही है, तो इसमें केवल मैक्सिमम ही लिखनी है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इट इज. All right, that's all. Ending now. Sir? Yes, sir. So do you want to give an instruction for the new student, Priyanshu? Separate classes will be there, but he has to wait for 1 or 2 days. One more student will be joining, तो उनको evening में we can take the beginning classes जो first lecture miss हुए. So let him continue. Priyanshu. Priyanshu, can you hear sir, beta? You can Yes, unmute sir. and talk to sir. Yeah. Yes, you can go through NCERT book. Beginning के जो topic है, charge and the electron, proton, etc. Charge के बारे में पढ़िए, field की basics and all. And if you want any, if you can want to ask anything, my phone number has been given. फिर से मैं repeat कर रहा हूँ. इस पे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है? If I don't see the message, you can call me directly. Okay, sir. ठीक है, तो फिलहाल तो कंटिन्यू करो. आई थिंक वन मोर स्टूडेंट इज देयर, फिर आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास जो बिगनिंग के हैं. आई विल टेक दैट एक्स्ट्रा क्लास अगेन फ्रॉम बिगनिंग. ऑलराइट, Yes, sir. ओके, चलो. Sir, shift me the host. Ma'am is yet to join. ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने. चलो, आई एम एंडिंग. नो डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन आस्क, otherwise I am just quitting now. Okay, one more student is waiting. Okay, sir, I am quitting now. Okay, sir.